Assalamualaikum, dear students. Here your lab instructor, Engineer Rabia Sidha. Today our experiment is experiment 7 to understand the time response of second order system in lab. जैसे आप लोगों ने previous lab में discuss किया था first order system. Lab outline is lab objective, equipment needed, theoretical background, software implementation, and then results. The lab objective is the time response of second order system. The equipment which we need in the lab is the PC and the software lab. What is the time response analysis? ये basically आप लोग की previous slide वाला है, ठीक है. Time response analysis is also called a time domain analysis. In the time domain analysis, time is the independent variable. When a system is given and the input, the response is the output, and this response varies with time is called the time response. Time response is the summation of transient and the steady state response. Basically क्या है, जैसे हम लोग सिस्टम पे कोई इनपुट देंगे उसका जो इफेक्ट आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो बेसिकली आप लोग का टाइम रिस्पॉन्स है. दो किस्म के रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक होता है ट्रांसिएंट और एक होता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. इन ऑसिलेशंस वाली जो ड्यूरेशन होगी वो बेसिकली आप लोग की ट्रांसिएंट है, और आफ्टर ऑसिलेशन जो आप लोग की ड्यूरेशन होगी वो आप लोग की है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. Second order system, the order of a control system is determined by the power of a s in the denominator of its transfer function. If the power of s in the denominator is the 2, then the system is the second order system. The general expression for transfer function of second order system is Cs is the output, Rs is the input, omega n is the natural frequency, s plus 2 zeta is basically the damping ratio. हेयर आप लोगों ने सिंप्लीफाई किस तरह से आप लोगों ने इक्वेशन ड्राइव किया है. आप लोगों ने सबसे पहले ये आप लोगों को पता है आर ऑफ एस इनपुट है, सी ऑफ एस आप लोग की आउटपुट है. इसके अंदर ट्रांसफर फंक्शन है, ब्लैक बॉक्स के अंदर यूनिटी फीडबैक है, 1 प्लस जी ऑफ एस आप लोगों ने इसके अंदर सब्सटीट्यूट करने. अगेन आपका वही वाला फार्मूला ड्राइव हो जाएगा जो मैंने आपको पीछे चंद्र फार्मूला लिखवाया सेकंड का. Time response parameter of second order system, time delay. Time delay is the time required to reach at 50% of its final value by a time response signal during the first cycle of oscillation. कि जहाँ पे आप लोग की ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में फर्स्ट ऑसिलेशन स्टार्ट होगी वो बेसिकली आप लोगों का डिले टाइम है. Rise time is the time required to reach a final value by underdamped time response signal during the first cycle of oscillation. If the signal is overdamped, then the rise time is continued. The time required by the response to rise from 10 to 90%. Here is the four responses: underdamped, overdamped, critical damped, and the undamped. When zeta is between the 0 and 1, which is the underdamped. When zeta is equal to 1, it is the critical. When zeta is equal to 0, it is the undamped. When zeta is greater than 1, then it is basically the overdamped. Zeta is basically the damping job. Here the peak time is simply the time required by response to reach its first peak, the first cycle of the oscillation. मैक्सिमम ओवरशूट जैसे आप लोगों ने देखा था फर्स्ट ऑर्डर में और 0 थी इसकी वैल्यू. बेसिकली ये होता क्या है, इज अ स्टेट वे डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द हाईएस्ट पीक, जहाँ पे मेरी मैक्सिमम पीक बन रही है, ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेडी स्टेट, जिस पॉइंट पे जाके वो बिल्कुल ही उसमें ऑसिलेशंस खत्म हो रही हैं, वो बेसिकली आप लोग का मैक्सिमम ओवरशूट है. मैक्सिमम ओवरशूट अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करना हो तो उसका फार्मूला है CTP. TP स्टैंड फॉर पीक टाइम माइनस C इन्फिनिटी, मीन्स के स्टेडी स्टेट की हमें ड्यूरेशन नहीं पता. इन्फिनिटी तक जाके भी कहीं पे भी वैल्यू पे जाके जहाँ पे आप लोग का सिग्नल स्टेडी स्टेट पे पहुँच रहा है, डिवाइडेड बाय C इन्फिनिटी, जाहिर सी बात है परसेंटेज है तो आप इनटू 100 भी इसको कर सकते. Settling time, the time that is required for the response to reach and stay within 2% to 5% of its final value is called settling time. Settling time का फार्मूला होता है TS से रिप्रेजेंट किया जाता है 4/A बेसिकली दी टाइम कॉस्ट होता है. सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, आप लोगों ने व्हाइल लूप सेलेक्ट करना है. अगेन जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर वाली लैब में किया था, रेड पे क्लिक करेंगे स्टॉप की कंडीशन के लिए कि हम लूप को सिर्फ एक दफ़ा रन करना चाहते हैं, ठीक है. आप लोगों ने फंक्शन पैलेट खोलना है, कंट्रोल और सिमुलेशन, कंट्रोल डिज़ाइन, मॉडल कंस्ट्रक्शन एंड सेलेक्ट दी CD कंस्ट्रक्ट फर्स्ट ऑर्डर मॉडल. आप लोगों ने क्या करना है, इसकी यहाँ पे टाइप को चेंज करना है. हम लोग करें अब सेकंड ऑर्डर मॉडल की, ठीक है. अब फिर आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल एंड सिमुलेशन, कंट्रोल डिज़ाइन, टाइम रिस्पॉन्स, CD स्टेप रिस्पॉन्स. इसकी टाइप चेंज करनी है, ट्रांसफर फंक्शन. अगेन आप लोगों ने कंट्रोल एंड सिमुलेशन, कंट्रोल डिज़ाइन, टाइम रिस्पॉन्स, CD पैरामीट्रिक टाइम रिस्पॉन्स. टाइप इसकी चेंज करनी है, इंटरनल में जाके ट्रांसफर फंक्शन. अगेन कंट्रोल एंड सिमुलेशन, कंट्रोल डिज़ाइन, मॉडल कंस्ट्रक्शन एंड गो टू CD ड्रा ट्रांसफर फंक्शन इक्वेशन फॉर द आउटपुट इक्वेशन. ट्रांसफर फंक्शन को आप लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन से कनेक्ट करना है. सिमिलर आप लोगों ने इसकी इनपुट को भी उसकी आउटपुट में कनेक्ट करना है. इसी तरह आप लोगों ने इसको भी इस तरह से आउटपुट पे इक्वेशन हम लोगों ने देखनी है. क्रिएट में जाके हम लोग इसको कर देंगे इंडिकेटर. सिमिलर स्टेप रिस्पॉन्स ग्राफ, क्रिएट में जाके आप लोगों ने इसको इंडिकेटर कर देना. अगेन आप लोगों ने क्या करना है, टाइम रिस्पॉन्स पैरामीट्रिक डाटा, क्रिएट एंड गो टू इंडिकेटर एंड सिमिलर आप लोगों ने टाइम रिस्पॉन्स ग्राफ में क्रिएट और इंडिकेटर कर लेना आप लोगों ने, ठीक है, अगर आप लोगों ने टाइम रिस्पॉन्स का डाटा देखना है. इसके बाद आप लोगों ने जाना है फर्स्ट फ्रंट पैनल में.
आप लोगों ने इधर जाना है न्यूमेरिक्स में जाके आप लोगों ने सिलेक्ट करना है वर्टिकल पॉइंटर स्लाइडर। एक का नेम आप लोगों ने रख देना डैम्पिंग रेशो, और एक आप नेम रख देना आप लोगों ने नेचुरल फ्रीक्वेंसी। डैम्पिंग रेशो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जीटा से, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा एन से। ये वो पैरामीटर्स हैं जो आप लोग के फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की आउटपुट पर इफेक्ट करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया, विंडो में जाके आप लोगों ने इधर कनेक्ट कर देना डैम्पिंग रेशो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। डैम्पिंग रेशो को आप लोगों ने डैम्पिंग रेशो से कनेक्ट करना है, ठीक है, प्रोब पे जैसे आप लोग करेंगे, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को आप लोगों ने नेचुरल फ्रीक्वेंसी जहाँ पे लिखा हो रहा आप लोगों ने कनेक्ट कर देना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जैसे आप इसकी स्लाइड की अप और डाउन मूवमेंट करेंगे तो आप लोग देखेंगे आप लोग की ग्राफ पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज़ किया तो आप लोग का ये वेरी करेगा। जैसे जैसे मैं इसको वेरी करती जाऊँगी, जीटा की वैल्यू ओमेगा आप लोग देख रहे हैं ग्राफ पे इफेक्ट करता जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसको डैम्पिंग रेशियो को वो करूँगी, आप लोग की ये ऑसिलेशन, जैसे जीटा की वैल्यू 0 से 1 के दरम्यान होगी वो अंडर डैम्प का ये रिस्पॉन्स हो गया 0 और 1। जैसे ही 1 से ग्रेटर दैन हो जाएगी आप लोग की क्या हो जाएगा, ओवर डैम्प्ड, अनडैम्प्ड और क्रिटिकल डैम्प हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम पैरामीटर, हम जो पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं, सी डी कंस्ट्रक्ट स्पेशल ट्रांसफर फंक्शन, सी डी स्टेप रिस्पॉन्स एंड सी डी पैरामीट्रिक डेटा, सेम वही पैरामीटर्स हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर में यूज़ किए थे। प्रोसीजर है, आप लोगों ने ब्लॉक डायग्राम करना है, कंट्रोल एंड सिमुलेशन में जाना है, सी डी कंस्ट्रक्ट सेकेंड ऑर्डर लेना है। ये आप लोग की ब्लॉक डायग्राम है, सेकंड ऑर्डर है, डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आप लोग के टाइम रिस्पॉन्स पैरामीट्रिक डेटा, आप डैम्पिंग रेशियो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे तो आप लोग रिस्पॉन्स देखेंगे, 4 किस्म के रिस्पॉन्स आएंगे, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड तब होगा जब जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, ओवर डैम्प्ड तब होगा जब जीटा की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होगी, अनडैम्प्ड तब होगा जब जीटा की वैल्यू 0 होगी, और आप लोग का बेसिकली क्रिटिकल डैम्प्ड तब होगा जब जीटा की वैल्यू